Hello. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. So, actually, according to your mathematics syllabus, all of you know mathematics syllabus in lateral entry. So, mathematics syllabus, the first model is Laplace transform, numerical method, Z transform, Fourier series and Fourier transformations, and last partial differential equation for EC student. Yeah, for EC student, partial differential equation. Or CSE student, for CSE student, partial differential equation replaced by probability and statistics, right? For CSE student, partial differential equation replaced by probability and statistics. So we have, let us start. Actually, Fourier transformation already have na, you know, Fourier Laplace transform already known in diploma. Sir, in third semester, sir. Sir, in diploma third semester, Laplace transformation. डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े हो ना तुम लोग? यस सर. नहीं पढ़ाया था, याद है? नहीं सर, याद नहीं. तो क्या पढ़े हो? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स periodic properties, periodic function, unit step function इसने पढ़े हो? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं पढ़े हो? याद नहीं है सर. तो था लेकिन हटा दिया था उसको लैप्लास. उसको हटा दिया था सिलेबस से. Okay, so no problem. I will start here. Fourier transformation, right? Fourier transformation will start. Fourier transformations and inverse Fourier transformations, Fourier sine cosine transformations, right? इसको हम शुरू करते हैं. Fourier transformation शुरू करेंगे, आफ्टर दैट Laplace transform एक साथ ही करेंगे, है ना? एक साथ ही इसको करेंगे हम लोग. So Fourier transformations, first we'll start the what is the concept of transformations. What is the concept of transformations? An improper integral of the form. Generally, improper integral of the form क्या होता है? Minus infinite to infinite KST FPDT. ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कर्नल का improper integral में, ठीक है, minus infinite KST FPDT is called integral transforms of FT if it is convergent. Sometimes it is denoted by fs, small fs से denote करो, otherwise transformations of functions of t. T capital T denote means transformations of ft. So here fs will transformations of ft will have minus infinite infinite kst fdt. ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला. The function kst, the kst क्या? What is kst? kst appearing in the integrand. kst appearing in the integrand. जो integrand के अंदर में जो दिया हुआ है is called kernel of the transform. इसको kernel बोलते हैं. kst को हम लोग kst बोलते हैं, kernel बोलते हैं, ठीक है. Where s क्या है? What is s?
S is a parameter, ठीक है, S is a parameter and is independent of T, ठीक है। S में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, S में भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कार्नल को हम लोग जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी चेंज। इफ वी टेक कार्नल को हम लोग डिफाइन कर दिए KST इक्वल टू exponential minus st where t is greater than equal to 0 and 0 t less than 0, ये तुम्हारा KST कार्नल ऑफ st दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 तो दिखा दे रहा ना, ये जो इक्वेशन 1, ये भी इक्वेशन 1 ही है। एक्चुअली इक्वेशन 1 को हम लोग ये जो इसको एक्सपेंड करके फंक्शंस ऑफ s के फॉर्म में लिखे हैं, फंक्शंस ऑफ s बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ft इक्वल टू दिस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। ये लिख सकते हैं? यस सर। श्योर? कैसे सर क्योंकि KST e टू द पावर माइनस ST भी लिख सकते हैं ना। यस सर। KST को e टू द पावर माइनस ST भी लिख सकते हैं, इसलिए यस लिख सकते हैं। लेकिन लिमिट देखो, हम पहला लिमिट क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट था, यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया, इनफाइनाइट हो गया। कैसे हुआ बोलो? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वहां पर जो लिमिट दिया हुआ टी का वो लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, काहे कि जो e टू पावर माइनस ST है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है सर। ओके, एक्चुअली कार्नल ऑफ एसटी डिफाइन क्या हुआ है, 0 से लेकर टी मतलब टी का अपर लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वो लिमिट 0 हो जाएगा। तो 0 से इनफाइनाइट में कार्नल डिफाइन किया हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस एसटी। सो हियर वी हैव, देखो ये मिल रहा है। और सेकंड पार्ट जो है माइनस इनफाइनाइट टू 0, इस पार्ट में कार्नल ऑफ एसटी 0 दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो? तो दिखाते हैं फॉर एग्जांपल, actually we know that functions of s equal to transformations of ft is equal to minus infinite to infinite kernel of st ft dt. According to, we know that the formula, right? This formula can be expanded away. So minus infinite to 0 k of st है ना ft dt plus 0 to infinite k of st ft dt. So next step, minus infinite to 0. Here kst will be 0. ft already have dt plus 0 to infinite. Kernel of st is equal to exponential minus st ft dt. इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेंट का 0 हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेंट विल हैव 0 to infinite exponential of minus st ft dt, ठीक है। दिस इंटीग्रेंट, ये इंटीग्रेंट को समझे कि नहीं, बोलो कैसे आ रहा है? समझ में आया? यस। स्टेप क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर है। ओके,
तो equation 1 becomes fs equal to transformation ft equal to exponential of minus st aptitude, limit is 0 to infinite. this integrand को हम लोग बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, इसी को बोलते हैं. आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशंस कर्नल ऑफ st विल चेंज, देन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी चेंज. देखो अब यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे. देखो फॉर हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशंस कर्नल ऑफ st विल हैव t j and st dt. ठीक है, ये हैंकेल ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन हो गया. मेलिन ट्रांसफॉर्म कर्नल ऑफ st e to the power s minus 1. ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ft इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i st dt. ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस में. तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा डिफाइन होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. देखो हैंकेल से मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 0 to इनफाइनाइट में डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, अब देखो द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx. एक्चुअली डेफिनेशन क्या है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का? द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज डिनोटेड बाय fs. ठीक है, fs और fx मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx इज डिफाइंड एज, देखो ये डिफाइंड हो गया. ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल डेफिनेशन है. ठीक है, दैट डेफिनेशन इज इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस. क्यों? लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, अब इसका इनवर्स फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे. इनवर्स फॉर्मूला डेफिनेशन होता है इनवर्स फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन एज. देखो ये डेफिनेशन था इनवर्स फॉर्मूला का. ठीक है, बोलो. ठीक है, एनीवन स्टूडेंट? बोलो. ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो. यस सर, ठीक सर है. ये फॉर्मूला आया कहाँ? और वही तुमको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. बेसिकली फॉर्मूला जो आ रहा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से ही यूज किया गया. ये जो कर्नल ऑफ st, ठीक है, इसको तो बोल ही दिए हम लोग कि kst जो होता है कर्नल ऑफ st, जहां s क्या है, s is a parameter independent of t. s may be real or complex number. ठीक है, तो s यहाँ पर देखो, यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस में s क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है क्योंकि माइनस i(x)। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है. ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन वही है. कर्नल ऑफ जो हम लोग चेंज कर दिए एक्सपोनेंशियल माइनस i(s(x) dx. तो ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन हो गया है. अब इसका इनवर्स करेंगे तो उल्टा का हो गया, उल्टा ये हो गया. ठीक है, एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अब यहाँ पर फोरियर एक्सपोनेंशियल जो है यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा साइन और कॉस में आता है कि नहीं होता है, बोलो. इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, साइन और कॉस में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो. यस. ओके, तो ये साइन कॉस में जब आएगा तो इसका इनवर्स फॉर्मूला में 1/2 पाई आ रहा है. ये 2 पाई क्या है, ये 2 पाई होता है कि साइन और कॉस का पीरियड होता है, पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, और कॉस का भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई ही होता है. इसीलिए वो आप पीरियड के हिसाब से 1/2 पाई आ रहा है. अब देखो तुमको दिखा रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन क्या होता है दोनों में. एक्चुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग तो डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन सब पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है. ठीक है,
what are the relations between Fourier transformation and Laplace transform? So we define functions of t as follow. Functions of ft equal to exponential minus xt हाई t, ये तुम्हारा फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। आप देखो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस आई वाई टी एफ डी डी टी, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक कर दिया, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो और जीरो टू इनफाइनाइट। देखो अब माइनस इनफाइनाइट टू जीरो में इसका फंक्शन ऑफ टी का वैल्यू क्या है, जीरो दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटीग्रेंड तो जीरो हो जाएगा, सेकंड इंटीग्रेंड ऑलरेडी है ओनली फॉर देखो ये मिलेगा तुमको, ये मिलेगा है ना, देखो मिलेगा कितने बोलो, ठीक है बोलो। यस यस सर। अब ये मिलेगा, देखो ये एक्सप्लेन करने से ये मिलेगा, यस सर। यस सर। हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो x प्लस आई वाई को हम लोग दिए एस कंसीडर कर दिए, देखो देख सकते हैं, यस सर। वह फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई टी हो जाएगा कि नहीं होगा बोलो तो, यस सर। तो रिलेशन क्या हुआ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ t इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म psi t, however psi t ऑलरेडी psi t जो है का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ, फंक्शंस ऑफ t दिया हुआ है, देखो psi t के फॉर्म में फंक्शंस डिफाइन किया हुआ है, तभी तुम्हारा रिलेशन ये निकला, ठीक है, दोनों का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, which is the required relation। अब देखो प्रॉब्लम में आते हैं, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ fx इक्वल टू, ये तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको निकालना है, ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन निकाल, एक क्वेश्चन दिए हुए, इवैल्यूएट द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअली डिफाइन क्या हुआ है, question is that find the Fourier transform of
fx has given that is x is that is limit of mod of x less than equal to a and 0 mod of x is greater than a। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। फॉर सॉल्यूशन as given functions of x is equal to values of x, here mod of x can be expressed away minus a less than equal to x less than equal to a or 0 mod of x is greater than a। ठीक है, इस जनरल में हम लोग mod x को हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं, है ना। अब बेसिकली फॉर्मूला होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i s x fx dx। क्लियर है क्या बोला वो? एनीवन स्टूडेंट? Fourier transformation fx we have minus infinite exponential of minus I sx fx dx। ठीक है, यस इसको तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला को। Fourier transformations of fx equal to minus infinite to minus a exponential of minus I sx fx dx plus minus a to plus a exponential of I xx fx dx plus a to infinite exponential minus I xx fx dx। ठीक है, ये तो इसको एक्सपेंड कर दिए। अब यहां पर देखो फर्स्ट इंटीग्रैंड वी हैव माइनस इनफाइनाइट तो माइनस ए minus I sx fx dx plus second integral minus a to a exponential of minus I sx fx we have that is x dx और थर्ड इंटीग्रल क्या होगा? 0 हो जाएगा। थर्ड इंटीग्रल विल बी 0 होगा ना। थर्ड इंटीग्रल क्या होगा? 0 हो जाएगा। यस सर। ओके, सो फर्स्ट इंटीग्रल फॉर फर्स्ट इंटीग्रल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दो। ठीक है, पुट माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो पुट कर क्या होगा बोलो तो? एनीवन स्टूडेंट बोलो। हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ minus x equal to y, that is I s y s y for example fx क्या होगा बोलो? माइनस y होगा। dx क्या होगा? d of y माइनस d of y। ठीक है ना।
ओके, लिमिट क्या होगा बोला यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट देंगे तो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा ना, यस साइन टू ए। और माइनस ए देंगे तो क्या प्लस ए हो जाएगा। हम्म, यस सर। होगा ना। फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, होगा बोलो, एनीवन स्टूडेंट बोलो, बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं, बोलो टेल मी। सर dy का माइनस साइन हटा के लिमिट को ये बदल दिए ना ऊपर नीचे। यस, ठीक है ना, ये माइनस हटा दिए, तो लिमिट चेंज कर दिए ए टू इनफाइनाइट। बोलो, अब तुम लोग देखो यहाँ पर चेक करो, अब चेक करो, यहाँ पर चेक करो ये पार्ट, ये थर्ड इंटीग्रल है, ये तुम्हारा जीरो हो जा रहा है, ठीक है, ये पार्ट जीरो हो जा रहा है, क्यों, ए टू इनफाइनाइट में एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ए टू इनफाइनाइट में फंक्शन ऑफ माइनस वाई जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलो तो, जब एफ एक्स जीरो हो सकता है तो एफ माइनस वाई जीरो क्यों नहीं होगा, ये पार्ट जीरो होगा, बोलो, होगा ना। हाँ, यस सर। okay, so we have only for second integral we have, देखो Fourier transformations of fx we have minus a to a exponential minus I s x into x dx, only बस दिस इंटीग्रल वी हैव, ठीक है। इसको हम लोग बाय पार्ट्स करो, सॉल्व करो, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सेकंड फंक्शन इंटीग्रल में क्या होगा, माइनस आई एस एक्स डिवाइड बाय माइनस आई एस इंटीग्रल ओवर माइनस ए टू ए माइनस ए टू ए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस वन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस आई एस एक्स बाय माइनस आई एस डी एक्स होगा। इट विल हैव माइनस आई को, ये तुम्हारा चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बोलो।
क्लियर है? बोलो। स्टूडेंट स्टेप क्लियर नॉट? बोलो बाय पार्ट्स में। ठीक है, बोलो। एनीवन स्टूडेंट? क्लियर कि नहीं? बोलो। सर नीचे वाला आई स्क्वायर कहाँ गया? कहाँ पर बोले? वैल्यू माइनस, वो नीचे में जो आई स्क्वायर एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर तो बाहर चला गया, लेकिन आई स्क्वायर कहाँ है? आज का भले क्या होता है? -1। यस सर। अच्छा हाँ हाँ। तो -1 माइनस क्या प्लस हो जाएगा? ठीक है ना? बोलो। वन बाई एस स्क्वायर कॉमन ले लो होल टर्म से, तो क्या मिलेगा? बोलो। वन बाई एस स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। और तुम लोग आई भी कॉमन ले सकते हो, आई बाई एस स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना? आई भी कॉमन ले लो और एस स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पर अगर हम आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा तुमको एक्सपोनेंशियल ऑफ और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई एस ए प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एस ए इसको ब्रेक करने से इसको अलग अलग कॉमन करना पड़ेगा तुमको, है ना?
इसको ब्रेक करने से तुमको मिलेगा ना, ब्रेक करने कॉस का फॉर्म में आएगा ना, इसको कॉस का फॉर्म में आएगा, ये तुम्हारा साइन का फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा तुम लोग को, है ना, जस्टिफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो सॉल्व करने से तुमको यह मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में ए तो उसमें कॉमन आ रहा है ना, इसमें तो ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम भी लेफ्ट कम है ना, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना इसको, है ना। सॉल्व करके फाइनली वी हैव, इसको हल्का सॉल्व कर लेना, 2 लाइन 2 स्टेप है ना। सॉल्व करने से तुमको मिलेगा 2i/s² इन ब्रैकेट as cos ऑफ sa, ये मिलेगा तुमको, और साइन ऑफ sa मिलेगा, है ना। इसको सॉल्व करने से तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा इससे, है ना। इसको तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, note. Yes, sir. Sir, attendance. Thank you. हो गया।